So, very good morning, all the participants. Today, we will be discussing this ring fencing of assets. Because, as you know, if you are a director in a company and you have given a guarantee, or your company is into CIRP, then you definitely want to protect your assets. So, what are the precautions you have to take before giving a guarantee to a bank? Because bankers are very shrewd. So what they do, every year they will be taking a certificate from you, net worth certificate. And in the net worth, you not only include your own wealth, but the wealth of your neighbors also, the wealth of your ancestors also. And you will say, I am having wealth of say 10 crores. Now, when there is a default and enforcement directorate is behind you, then you will say that I don't have anything. But then they will say that okay, this is the net worth certificate you have given, and your CA also has signed this. So naturally, you are in for some trouble. So, what are the precautions you have to take whenever you are giving a guarantee? So, this is the topic for today's discussion. Now let me share my screen with you. I hope my screen is visible. Is it visible? Yes, sir. Visible, sir. Visible है ना? This PPT I have shared in the chat box also. So here, Pooja ji and Sudhakar ji, you have to write in the group whether it is the same type of relationships which are mentioned in section 524A. I have already shared one chart with you. Now this is another chart. You just to let me know in the group at your own convenience whether this chart can also work to explain the type of relationships which are given in section 524 capital. ठीक है जी? Prima facie, it appears that ये थोड़ा link है सर. हाँ, तो थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं. आप इसको चेंज भी कर लीजिएगा अपने हिसाब से. यू कैन मॉडिफाई इट, और वो वाला जो चार्ट है उसको भी ग्रुप में डाल दीजिएगा. सो मतलब इट इज अनदर वे ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स, है ना. तो जस्ट यू हैव टू एंश्योर कि भाई ये चार्ट भी उसी लाइंस पर है. नाउ सुधाकर जी, कैन यू कंफर्म वेदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज इन अवर सिलेबस और नॉट? ये है हमारे सिलेबस में या नहीं? है सर. इट इज देयर, है ना? है सर. तो the main important sections of Transfer of Property Act, which is otherwise also in our syllabus, are section 52 and section 53. So what section 52 says? Because we are here, our angle is insolvency. So we have to read from that angle. Now section 52 says transfer of property pending suit relating thereto. So it says whenever some court proceeding is going on, so it says during the pendency in any court having authority within the limits of India. Now it will be including the state of Jammu and Kashmir because of this article 370. So even Jammu and Kashmir is covered. So it says if there is any pendency in any court or any suit or proceeding, and in which any right to immovable property is directly and specifically in question. So somebody has gone in court against the property which you are having, and the subject matter is pending in the court. So it says the property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceeding so as to affect the rights of any other party thereto under any decree or order which may be made therein, except under the authority of the court and on such terms as it may. So now you have to take permission of the court to, if you want to do away with that property, if you want to transfer that property, or if you want to otherwise deal with that property. So it says, and for the purpose of this section, the pendency of a suit or proceeding shall be deemed to. Now, what is the date of commencement? The date of commencement is the date of presentation of the plaint.
because civil procedure code is also in our syllabus. And what civil procedure code says? Civil procedure code says that the suit starts with the presentation of the plaint. है ना? It is then followed by affidavit and so on. The procedure goes on. This is the procedure which is outlined in civil procedure code, and that is also in our syllabus. So it says that it shall be deemed to commence from the date of presentation of the plaint or the institution of the proceeding in a court of competent jurisdiction, and to continue until the suit or proceeding has been disposed of by a final decree or order and complete satisfaction or discharge of such decree or order has been obtained or has become unobtainable by reason of the expiration of any period of limitation prescribed for the execution thereof by any law for the time being in force. So now section 52 is clear that if anything, if a plaint has been presented in the court case is going on, and either final decree has been passed or complete satisfaction or discharge of such decree or order has been obtained, or limitation period. By way of limitation period, that period has expired. This is section 52. Now section 53. Section 53 talks of the transfer of property act. So what it says? It says every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor. So here the intention is important. Section 53. It says if you transfer any property and your intention is to defeat or delay the creditors of the transferor shall be voidable at the option of any creditor so defeated or delayed. Another important point here is that ये कहीं से आवाज आ रही है पीछे से कोई. Sir, somebody थोड़ा अच्छा एस कुमार जी के यहाँ से आ रही है क्या? ये हो सकता है ट्रेन वगैरह में होंगे या कहीं रास्ते में होंगे, मे भी कोई बात. पर थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए या कहीं से आवाज आ रही है, नो इश्यूज. सो सेक्शन 53 क्या बोलता है? सेक्शन 53 बोलता है कि एवरी ट्रांसफर ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विद इंटेंट टू defeat or delay the creditors of the transfer shall be voidable at the option of any creditor so defeated or delayed. यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि सपोज ए क्रेडिटर फाइल्स अ सूट, then it shall be in the nature of a representative suit. So it shall be presumed as if all the creditors have filed that. Nothing in this subsection shall impair the rights of a transferee in good faith and for consideration. ठीक है? Nothing in this subsection shall affect any law for the time being in force relating to insolvency. A suit instituted by a creditor, which term includes a decree holder, whether he has or he has not applied for execution of his decree to avoid a transfer on the ground that it has been made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor, shall be instituted on behalf of or for the benefit of all the creditors. जो point मैं बोल रहा था कि it is in the nature of a representative suit. Every transfer of immovable property made without consideration with intent to defraud a subsequent transferee shall be voidable at the option of such transfer. For the purpose of this subsection, no transfer made without consideration shall be deemed to have been made with intent to defraud by reason only that a subsequent transfer for consideration was. तो ये सेक्शन 52 और सेक्शन 53 दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है हमारे. अब इसमें हमें देखना क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट्स हैं. ये दो जजमेंट्स भी मैं आपको बताता हूं. ये दो जजमेंट्स कौन सी हैं? एक तो है हिमांशु कुमार रॉय चौधरी वर्सेस हासिम अली खान. ये कलकत्ता हाई कोर्ट की है. इसमें क्या कहा? इसमें ये कहा कि if you execute a trust deed for the benefit of creditors, so it is prima facie not fraudulent. ये बहुत अच्छी जजमेंट है हिमांशु कुमार राय चौधरी वर्सेस हासिम अली खान, कोलकाता हाई कोर्ट की जजमेंट. और एक और दूसरी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की है ये,
चोगमल भंडारी एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर कुर्नूल। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि suppose a liability has not been fructified, there is no determination of liability. So before determination of any liability, if there is a transfer, then it is a valid transfer. ठीक है? And that is not challenged. तो ये दो जजमेंट्स हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा। हिमांशु कुमार राय चौधरी वर्सेस हासिम अली खान, ये कोलकाता हाई कोर्ट की है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये चोगमल भंडारी एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर कुर्नूल। ठीक, अब इस बैकग्राउंड के साथ हम अपना शुरू करते हैं, क्योंकि होता क्या है, डायरेक्टर्स हैव टेकन अ लोन और कंपनी हैज टेकन अ लोन, एंड नाउ दे वांट टू ट्रांसफर द एसेट्स, दे वांट टू टेक अवे द एसेट्स, दे वांट टू पार्क द एसेट्स इन सच अ वे दैट दे आर अवे फ्रॉम द clutches of the creditors. They don't want to pay the creditors. They will do some sort of transfers. So first of all, we have to see whether such transfers are hit by section 52 or section 53. And now let us go to this IBC. So what IBC says? In IBC, there are various sections. Section 14 is there, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 66 and 52. So these are some of the important sections for insolvency, and we will deal with each one of them. And then, because section 14, what section 14 says? Section 14 puts a bar on the transfer, encumbrance, alienation or disposing of any of its assets, legal rights or beneficial interest therein. So if we read section 14, so what section 14 says? Section 14 says that subject to the provisions of subsection 2 and 3, on the insolvency commencement date, the adjudicating authority shall by order declare moratorium for prohibiting all of the following. And I'm reading the relevant clause. The relevant is transferring, encumbering, alienating, or disposing of by the corporate debtor any of its assets or any legal right or beneficial interest therein. So you cannot transfer, you cannot create encumbrance, you cannot alienate, you cannot dispose. This restriction is on city. But now, if we read section 20, what section 20 says? Section 20, subsection 2. Section 20, subsection 2, subsection C. What it says? To raise interim finance. कोड खोलने की तो जरूरत नहीं ना, कोड तो आपके पास है ही, या मैं कोड भी यहाँ पर दिखाऊं आपको? नहीं से है। कोड तो है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो एक बार देख भी लेते हैं, चलो कोड भी खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास नहीं भी होगा तो। बाकी तो अब तो सेक्शन आईबीसी के ही है, आईबीसी के बाद में फिर हम सरफेसी पर भी जाएंगे। एक मिनट लगेगा, क्योंकि और थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। इससे क्या होगा, आपके माइंड में ना कुछ थॉट्स आ जाएंगे, फिर आपको अपने हिसाब से उसको पढ़ सकते हो। तो सेक्शन 14, ये सेक्शन 14, ठीक है जी। सेक्शन 14 बी हमने पढ़ लिया। सेक्शन 14(1)(b), ट्रांसफरिंग, एनकम्बरिंग, एलाइनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ बाय द कॉर्पोरेट डेटर एनी ऑफ इट्स एसेट्स ऑन एनी लीगल राइट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम इसको जक्स्टापोज करते हैं सेक्शन 20 पर। अब सेक्शन 20 क्या बोलता है? भाई 14 ने तो एक बात बोल दी कि सीडी कुछ नहीं कर सकता। अब सेक्शन 20 क्या बोलता है? सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सी क्या बोलता है? ये बोलता है टू रेज इंटरिम फाइनेंस provided that no security interest shall be created over any encumbered property of the corporate debtor without the prior consent of the creditors whose debt is secured over such encumbered property. बंद कर दे। ठीक है, प्रोवाइडेड एक दैट बड़ा नो मच्छर प्रायर काट कंसेंट। लेना। ये कहाँ से आवाज आ रही है? थोड़ा मम्मी म्यूट नीचे करके गई हुई है। अरे यार, प्रोवाइडेड ये दैट, करने को क्या
No prior consent of the creditor shall be required where the value of such property is not less than the amount equivalent to twice the amount of the, ठीक है। 20 अभी सबसेक्शन दवाई 2 वाला बच्चा हमारा है। सबसेक्शन सी समझ में आ गया आपको। अब पूजा जी ये सेक्शन आप मुझे समझाइए और ये बताइए कि सेक्शन 14 के साथ कोई कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं है इसका। ये जो है सेक्शन 20 या कोई भी आप बताइए, आप में से कोई भी बताइए। मैंने एक क्वेश्चन रखा आपके सामने। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, सेक्शन 14 कुछ बोल रहा है, सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सी कुछ दूसरी बात बोल रहा है। तो आपको क्या लगता है कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं है? चम्मच बताइए। मुझे बर्फी लेनी है चम्मच से। त्रिशा जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बर्फी आप ले सॉरी रही हैं लेकिन हम नहीं ले रहे बर्फी, तो सर, आप सॉरी मेरे को अपने को रियलाइज। म्यूट कर लीजिए। सॉरी सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारे को भी मुंह में पानी आ जाएगा फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा पढ़ाना, ये बात। तो सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बताइए, या सुधाकर जी कुछ बताइए क्या है भाई, ये 14 और 20 का क्या झगड़ा है, या दोनों ठीक हैं? आपको क्या लगता है? Sir, 14 talks about the moratorium, sir, which automatically, I mean, which commences, sir. नहीं Uh, देखो सेक्शन 14 हमने पढ़ लिया है ना, अभी मैंने पढ़ाया ना आपको, दोबारा पढ़ा yes, sir. दिया। Yes, sir. 2 मिनट लगेंगे कोई बात नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। Ah, देखिए sir. सेक्शन 14 1 बी क्या बोलता है? सेक्शन 14 1 बी बोल रहा है Yes, sir. ट्रांसफरिंग, एनकम्बरिंग, alienating or disposing of by the corporate debtor any of its assets or an illegal right or beneficial interest therein। आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, Yes, sir. एनकम्बर नहीं कर सकते, मना कर दिया, sir. एलाइनेट नहीं कर सकते और डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। अब सेक्शन 20 क्या बोल रहा है? ये सेक्शन 20 बोलता है। तो अब आप मेरे को समझाइए कि सेक्शन 14 और 20 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सी का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? Sir, Section 20 speaks of raising of interim finance, sir, हाँ where no security interest is created, sir. नहीं बोल रहा है ना, हाँ. वो बोल रहा है विदाउट द प्रायर कॉन्सेंट, इसका मतलब कॉन्सेंट से तो कर सकते हो ना। Hmm. Yes, sir, but that is if the amount equivalent to twice of the amount of debt, इसका कम होना चाहिए, sir. नहीं नहीं नहीं, देखिए मुझे जो बात समझ में आई है, मेरे भी ज्ञान चक्षु आज ही खुले हैं, इसीलिए मैं क्या आपको भी बता दूं। ये बात कर रहा है एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी की, ठीक है, Yes, sir. विच इज ऑलरेडी एनकम्बर्ड। भाई एक आदमी के ऊपर एक आपने सूटकेस लाद रखा है पुली के ऊपर, उसके ऊपर दूसरा भी लाद दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जो एनकम्बर्ड नहीं है वहां पर क्रिएट नहीं कर सकते, मुझे ये पॉइंट समझ में आया। समझ गया आप मेरी बात? सेक्शन 14 क्या बोल रहा है? आप एनकम्बर नहीं कर सकते। ये क्या बोल रहा है? कोई एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरिम फाइनेंस रेज कर सकते। इसका क्या मतलब है? इसका दूसरा मतलब ये है अगर कोई अनएनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है तो वो एनकम्बरेंस वहां नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? क्यों पूजा जी? मतलब तो ये एक कि टेंस में अगर कोई मीनिंग तो यही फ्री निकल। प्रॉपर्टी है जिस पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं है तो उस पर चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहा है? अगर कोई एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है तो उस पर आप कॉन्सेंट ले लीजिए क्रेडिटर्स, ठीक है, ताकि आप इंटरिम फाइनेंस रेज कर सकें। और उसमें भी जरूरत नहीं है अगर उसका ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डेट उसकी सिक्योरिटी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि उसका लोन मान लीजिए 10 करोड़ का है और प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 करोड़ की है ना, तो उसको 20 करोड़ की सिक्योरिटी चाहिए ना, बाकी जो 30 करोड़ है उसके ऊपर आप इंटरिम फाइनेंस रेज कर सकते हो। ये सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सी बोलता है। तो सेक्शन 14 और सेक्शन 22 सी को अगर हम दोनों को मिला करके पढ़ें तो ये निकलता है कि नया तो कोई इनकम्बरेंस हो नहीं सकता, फ्रेश इनकम्बरेंस नहीं हो सकता, लेकिन ऑलरेडी कोई इनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर आप इंटरिम फाइनेंस रेज कर सकते। मेरे को तो ये समझ में आया। आपको क्या लगता है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग सही है कि गलत है?
Sir, that is, sir, in section 20, because the property is already encumbered, राइट, so therefore उसका already security interest लग गया. हाँ नहीं वो कह रहा है उसी के ऊपर और इंटरम फाइनेंस। भाई देखो ऐसा है, योर कंपनी इज इनटू सीआईआरपी, इफ द कंपनी इज इनटू सीआईआरपी दैट मींस देयर इज अ लिक्विडिटी क्रंच। कंपनी के पास पैसे तो है नहीं। Yes, sir. अगर पैसे नहीं है, आप हाईवे पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, आप क्या करोगे? किसी से मांगोगे, है ना, पेट्रोल, कि भैया मेरे को पेट्रोल पंप तक जाने के लिए कुछ पेट्रोल दे दो। तो वही इंटरिम फाइनेंस है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरिम फाइनेंस, कि फॉर द टाइम बिंग टू कीप द बिजनेस रनिंग आप इंटरिम फाइनेंस आपको चाहिए, है ना। Yes, sir. क्योंकि आपके एम्प्लॉयज भी हैं, आपका गोइंग कंसर्न है ना। सीआईआरपी में तो गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न में मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री चलानी है, फैक्ट्री चलाने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, है ना। भाई पुराने वाले का तो आप क्या दोगे, क्लेम रेज कर लो, करंट ड्यूज तो आपको देने पड़ेंगे ना। सेक्शन 14 क्या बोलता है? सेक्शन 14 बोलता है ना ये, कि भाई जो भी ये आपके करंट ड्यूज तो आपको क्लियर करने हैं, चाहे ये गवर्नमेंट ड्यूज हो, चाहे आपके क्रिटिकल इनपुट्स वाले हो। सिर्फ इसेंशियल जो सर्विसेज है उसके लिए आप नहीं भी दे सकते, ठीक है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है, जो इसेंशियल गुड्स या सर्विस है वो है टीवी आपका, ये जो अपना टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीज, है ना। बट करंट ड्यूज अदरवाइज तो आपको देनी है। तो 14 और 20 को अगर हम मिला करके पढ़े तो ये मतलब बनता है। yes, sir. मतलब here also, because there is a saving grace, that even if you have to the RP has to raise interim finance, the value of such property should be less than twice the amount of debt. मतलब there is a buffer रख रहे हैं ना sir? The value of the property should be more than twice the amount of debt already raised. Because that is the buffer, sir. Because actually you have to give safety to the person from whom you have already taken the loan. It is already encumbered property. That means charge has already been created against that property. So let us understand it by way of an example. 10 crore is the amount of debt and value of the property is 50 crores. So up to 20, if you give him security up to 20 crores, then it means he is safe. है ना, even if the value falls down, so he will be sufficiently covered. And beyond 20, on the balance 30, you can raise interim finance by creating a pari passu charge. This is the meaning. But if we read it along with section 14, तो सेक्शन 14 में अगर आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन कर देता है कि भाई एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिस पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं है, तो क्या उस पर चार्ज आप क्रिएट कर पाओगे? द आंसर विल प्रोबेबली बी नो। आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं, पहले तो ये बताइए। सर सेक्शन 20 में एक चीज और है कि वो सिर्फ आरपी के पास अवेलेबल है ना सर, मीन्स और वो जो देखिए ऐसा है, आरपी के 14 पास जो तो है वो वो तो देखिए कॉर्पोरेट बात तो डेटर वही, देखो ऐसा है, सीआईआरपी पीरियड में तो जो भी काम करेगा वो आरपी ही आरपी करेगा। करेक्ट जी। इसका मतलब जो 14 में लिखा है वो 14 में वो सारे काम कर लेगा। 14 में जो भी काम लिखे हैं, 14 वाले काम तो उसने आरपी ने थ्रू डेटर ही करने हैं ना। कंपनी का नाम तो चलता ही है, कंपनी स्टिल ए गोइंग कंसर्न, कंपनी कोई डिसॉल्व तो हुई नहीं है, ना ही वो लिक्विडेशन में है। नहीं लिक्विडेशन में तो लिक्विडेटर होता है, जी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीआईआरपी में तो कंपनी का नाम तो चलेगा ही ना। भाई डायरेक्टर नहीं साइन कर रहे, आरपी साइन कर रहा है, इतना ही फर्क है बस, और क्या। बैंक अकाउंट भी कंपनी के नाम का, कंपनी के नाम का ही रहेगा वो। जी सिर्फ उसमें क्या रहेगा कि उसके सिग्नेटरी सिग्नेटरी चेंज हो जाएंगे, सिग्नेटरी वो हो जाएगा। तो पहले आप बताइए कौन कौन सा मेरी बात से एग्री करता है, कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जिस पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं है, तो क्या उस पर आप इंटरम फाइनेंस रेज कर पाओगे? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि No, 14 क्या बोलता है, 14 प्रोहिबिट करता है, एनकम्बर भी नहीं कर सकते। इसलिए 20 में क्या कहा, 20 में ये कहा जो ऑलरेडी एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर रेज करो। प्रैक्टिकली तो देखो ऐसा होता है कि कोई ऐसी एनकम्बरेंस फ्री प्रॉपर्टी होती ही नहीं, है ना। इतनी ही प्रॉपर्टी होती तो वो इंसॉल्वेंसी में क्यों जाता। हम्म बट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि क्लीन प्रॉपर्टी है, कि कोई भी एनकम्बरेंस नहीं है, तो क्या इंटरिम ये जो आरपी है उसके ऊपर फाइनेंस रेज कर सकता है? दिस इज द क्वेश्चन। नो सर। चलिए उसके बाद में हम पढ़ते हैं सेक्शन 43, 45। अब सेक्शन 43 क्या बोलता है?
सेक्शन 43 बोलता है आपने क्या किया, प्रायोरिटी चेंज कर दी, ठीक है। और सेक्शन 43 में भी इंटरिम फाइनेंस का रेफरेंस आता है। सेक्शन 43 क्या बोलता है? सेक्शन 43 बोलता है आपने क्या किया, आपने कुछ पैसे देने थे किसी के, कोई एंटीसीडेंट फाइनेंशियल डेट था या ऑपरेशनल डेट था या अदर लायबिलिटी थी, है ना, एंड यू हैव क्रिएटेड ए, you have altered the priority of payment and there is a look back period also, है ना। look back period है आपका 2 years in case of related party and 1 year in case of unrelated party। लेकिन यहां पर क्या बोलता है, एक ही बोलता है any transfer creating a security interest in property acquired by the corporate debtor। कोई आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की, प्रॉपर्टी का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी आपने, प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट कुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो, है ना। तो एनी ट्रांसफर क्रिएटिंग ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटा टू द एक्सटेंट दैट सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिक्योर्स न्यू वैल्यू। अब आपने ये जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया, इसके बदले में आपको नई वैल्यू मिली। वो नई वैल्यू क्या है, वो इंटरिम फाइनेंस में, एंड वाज गिवन। इंटरिम फाइनेंस होगा या नए गुड्स भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि न्यू वैल्यू का मतलब यहां पर इंटरिम फाइनेंस ही है। इट कुड बी इंटरिम फाइनेंस, इट कुड बी सम न्यू परचेज, है ना, and was given at the time or after the signing of a security agreement that contains a description, and such transfer was registered with an information utility on or before 30 days after the corporate debtor receives possession of such property। ये 43। तो 43 क्या बोलता है, 43 ये बोलता है कि भाई आपने कुछ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अब एक आप सप्लायर के पास गए, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यू हैव गॉन टू, यू हैव अप्रोच्ड द सप्लायर एंड यू टेल हिम दैट आवर कंपनी इज इनटू CIRP, है ना, तो वी वांट टू परचेज सम गुड्स फ्रॉम यू। वो बोलेगा व्हाट सिक्योरिटी यू आर ऑफरिंग, है कि नहीं, सिंस योर कंपनी इज इनटू CIRP, so I am not willing to supply you the goods because payment may be an issue। So you will say, okay, we'll create some security interest. We will give you some security, some sort of security. And then that has to be registered with the information utility also। Now, if you see the provisions regarding information utility में एक बार आप सेक्शन मेरे ख्याल 215 देखिएगा एक बार, शायद 215 है, देख लेता हूँ कौन सा सेक्शन है एग्जैक्टली। 215 215 बोलता है प्रोसीजर फॉर सबमिशन एटसेट्रा ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात करता है कि अगर कोई आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर है, जो सप्लायर है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर बन जाएगा। तो एन ऑपरेशनल क्रेडिटर में सबमिट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशंस है, वहां पर भी कुछ कंडीशंस हैं कि भाई यू वांट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और यू वांट टू हैव इंफॉर्मेशन, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू रजिस्टर इट विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो ये 43 है। अब लेकिन 43 में क्या, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज, नो, इंटेंशन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन 43। आपकी इंटेंशन अच्छी थी, खराब थी, कोई मतलब नहीं, इट विल स्टिल बी डीम्ड एज प्रेफरेंशियल ट्रांसफर। और जब तक ये वाली कंडीशंस मीट नहीं होती हैं, तब तक क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी 44 पे। इसी तरह से 45 अंडर वैल्यूड की बात करता है। अंडर वैल्यूड में भी क्या है कि यू गिव समथिंग फॉर फ्री और यू गिव इट at a value which is significantly lower, and who will judge that value, that will be done by the independent expert which shall be appointed by the adjudicating authority, ठीक है। और इसके लिए भी relevant time 1 year और 2 years है, 2 years in case of related party, 1 year in case of unrelated party, ठीक है। ट्रांजेक्शंस डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स 49 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 49 क्या बोलता है, 49 में एक और खास बात है। 49 में क्या खास बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोई लुक बैक पीरियड है ही नहीं,
मतलब कभी भी जब से कंपनी शुरू हुई तब से आप पीछे जा सकते हो, ठीक है। अगर आप, और यहां पर किसने एप्लीकेशन लगानी है ये भी नहीं लिखा है 49 में। क्या कहता है, वेयर द कॉर्पोरेट डेटा हैज एंटर्ड इनटू एन अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शन and the adjudicating authority is satisfied that such transaction was deliberately entered in। तो अगर deliberately आपने एंटर की है कोई ट्रांजैक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन मतलब या तो आपने फ्री में दे दिया या फिर कम कंसिडरेशन, और पर्पस क्या है, फॉर कीपिंग एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा बियॉन्ड द रीच ऑफ एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू मेक अ क्लेम अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटा, or in order to adversely affect the interests of such a person in relation to the claim, the adjudicating authority shall make an order। तो वो पुरानी पोजीशन को रिस्टोर कर देगी एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पर्संस हु आर विक्टिम्स ऑफ सच ट्रांजैक्शंस, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या पढ़ा, वहां 52 53 पढ़ा था ना, वो 52 53 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वो यहां पर आ रहा है। क्या बोल रहा है, इट शैल नॉट इफेक्ट एनी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी विच वाज एक्वायर्ड फ्रॉम ए पर्सन अदर देन द कॉर्पोरेट डेटा। लेकिन अगर कॉर्पोरेट डेटर ने नहीं ट्रांसफर किया, किसी दूसरे ने ट्रांसफर किया एंड वाज एक्वायर्ड इन गुड फेथ फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस ऑफ द रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस और अफेक्ट एनी इंटरेस्ट डिराइविंग फ्रॉम सच ए, ठीक है, shall not require a person who received a benefit from the transaction in good faith for value and without notice of the relevant circumstances to pay any sum unless he was a party to the transaction, ठीक है। तो यहां पर 52 को उन्होंने इनडायरेक्टली कवर कर लिया, लेकिन क्या बोला, अदर देन द कॉर्पोरेट डेटर, अगर कॉर्पोरेट डेटर ने किया है तो फिर रिवर्स हो जाएगा ट्रांजैक्शन। अब इसके साथ ही हम पढ़ते हैं 66। 66 क्या बोलता है, एक मिनट 66 पर चलता हूं। fraudulent trading or wrongful trading, sir? हाँ, मैं जरा वो स्लाइड नंबर देख रहा हूं, तो स्लाइड नंबर, हाँ 452 के आसपास होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर हमें लोगों को पास होना है तो पास होने के लिए अपना दिमाग जो है ना एक से ज्यादा सेक्शंस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। 66 क्या बोलता है, 66 बोलता है फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग और रॉन्गफुल ट्रेडिंग। If during the CIRP or liquidation, it is found that any business of the corporate debtor has been carried on with intent to defraud creditors of the corporate debtor or for any fraudulent purpose, ठीक है। यहाँ पर इंटेंट इंपॉर्टेंट, ऐसे सेक्शन 49 में इंटेंट इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 66 में इंटेंट इंपॉर्टेंट। The adjudicating authority may on the application of the RP pass an order। यहाँ पर क्या है, 66 में खास बात क्या है, 66 में खास बात यह है कि ये पर्सनल लाइबिलिटी फिक्स कर दे, और 66(1) और 66(2) भी डिफरेंट है। 66(1) क्या बोलता है, 66(1) बोलता है कि भाई कोई भी बिजनेस सीडी का उसका पर्पस ही डिफ्रॉड करना या फ्रॉडुलेंट पर्पस, तो adjudicating authority may on the application of RP pass an order that any persons who are knowingly parties to the carrying on of the business in such manner shall be liable to make such contributions to the assets of the corporate debtor as it may deem fit, ठीक है। क्या होगा, जो भी पार्टीज दे वर नोइंगली पार्टीज टू दी कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस शैल बी लाइब। अब यहां पर क्या कवर कर लिया, मान लीजिए भाई जो डायरेक्टर है कंपनी का वो खुद तो इन्वॉल्व होते नहीं, मान लीजिए उसने किसी अकाउंटेंट को बोल दिया कि भाई ये ट्रांजैक्शन कर लो, तो इसने क्या कहा, एनी पर्सन
who were knowingly parties to the carrying on of the business in such manner, जो भी आदमी है वो सारे आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। वो कोई अकाउंटेंट भी हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, ठीक है, जिसको पता होगा ये फ्रॉड हो रहा है और वो अगर फ्रॉड में असिस्ट कर रहा है तो क्या है, 66 में लायबल हो जाए, ठीक है। क्योंकि 49 तक क्या था, 49 में तो क्या था, बेसिकली रिवर्स कर रहे थे ट्रांजेक्शन। यहां और ज्यादा पर्सनल लाइबिलिटी भी आ गई, और किसकी आ गई, कंपनी या डायरेक्टर्स की नहीं, दूसरे लोगों की भी, ठीक है। On an application made by a RP during CIRP, the adjudicating authority may by an order direct that a director or partner of the corporate debtor as the case may be। अब देखिए 1 और 2 में फर्क क्या है, 1 में क्या लिखा, एनी पर्सन, एनी पर्सन में तो कोई भी आ, ठीक है, अकाउंटेंट भी आ गया, मैनेजर भी आ गया, सीए भी आ गया, है ना, कंपनी सेक्रेटरी भी आ गया, जो सब आ गया, है ना, जिसको पता है कि भाई ये फ्रॉड कर रहे हैं। नहीं तो वो कह देगा मैंने तो किया नहीं, नहीं तूने नहीं किया, जो पार्टीज नोइंगली पार्टी। 66(2) में किसकी लाइबिलिटी रखी, डायरेक्टर या पार्टी। हमें इस तरह से ध्यान से पढ़ना है क्योंकि वो पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। As the case may be, shall be liable to make such contribution to the assets of the corporate debtor as it may deem fit if before the insolvency commencement date such direct, ये इसको कहते हैं हम ट्विलाइट जोन। ये ट्विलाइट जोन क्या होता है, ट्विलाइट जोन ये है कि हम सब, हमें मालूम है कि भाई अब रात है, अब दिन होने वाला है, अब शाम हो गई, अब रात होने वाली है, हमें मालूम है। इसी तरह से जो गड़बड़ करता है उसको मालूम है कि कंपनी डूबी ही डूबी, है ना, तो इसको कहते हैं हम ट्विलाइट जोन। ही न्यू और ऑट टू हैव that there was no reasonable prospect of awaiting the commencement of a corporate insolvency resolution process in respect of such corporate debtor, ठीक है, उसको मालूम था कि होने वाला है, एंड सच डायरेक्टर और पार्टनर डिड नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस इन मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल लॉस टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेट। भाई वो खुद गड़बड़ कर रहा है तो उसको तो मालूम है ना कंपनी तो डूबेगी डूबेगी, है ना, वो फिक्टिशियस परचेजेस बुक कर रहा है, कंपनी से पैसे निकाल रहा है, फिक्टिशियस सेल्स बुक कर रहा है, वहां से रिकवरी आनी ही नहीं, तो आज डूबी कल डूबी, डूबनी डूबनी, और उसने कोई ऐसा डिड नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, तो 1 और 2 का फर्क भी हमें समझ में आ गया। 1 और 2 में फर्क क्या है, 1 और 2 में फर्क ये है कि इसमें कोई भी पार्टी हो सकती है, और 2 में जो लाइबिलिटी वो डायरेक्टर्स या पार्टनर्स, ठीक। Notwithstanding anything contained in this section, no application shall be filed by RP under subsection 2 in respect of such default against which ये पेंडेमिक पीरियड की बात कर रहा है, अगर सस्पेंडेड है तो उस पीरियड में कुछ, ठीक है। और जो ड्यू डिलिजेंस है वो क्या है, shall be deemed to have exercised due diligence if such due diligence was reasonably expected of a person। जो एक आदमी जो काम करता है ना, तो वो जो सावधानी लेता है वो इसको सावधानी लेनी है, अगर इसने वो सावधानी नहीं ली तो ये मान लिया जाएगा कि he has not exercised due diligence, reasonable expectation, ठीक है। भाई देखिए देयर कुड बी रॉन्ग डिसीजन इन बिजनेस, बिजनेस में रॉन्ग डिसीजंस भी हो सकते हैं, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी हो सकती हैं, बट आपको देखना है कि आप बिल्कुल अंधाधुंध तो नहीं काम कर रहे ना। तो इफ यू आर रीजनेबली एक्सपेक्ट डूइंग गुड देन इट्स ओके। तो ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या है, इफ इट वाज रीजनेबली एक्सपेक्टेड ऑफ ए पर्सन कैरिंग आउट द सेम फंक्शंस एज आर कैरिड आउट बाय सच डायरेक्टर और पार्टनर एट द केस में भी इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट, ठीक है। तो 66 का ऑफशूट है सेक्शन 67। 67 क्या बोलता है कि अगर आपने 66 1 या 2 में गड़बड़ की है तो क्या होगा, पहला, प्रोवाइड द लाइबिलिटी ऑफ एनी पर्सन अंडर द ऑर्डर टू बी चार्ज ऑन एनी डेट और ऑब्लिगेशन ड्यू फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर टू हिम, ठीक है, or on any mortgage or charge or any interest in a mortgage or charge on assets of the corporate debtor held by or vested in him or any person on his behalf or any person claiming as assignee from or through the person liable or any person acting on his। मतलब ये है कि जिसने गड़बड़ की है उसको ठहरा दिया कि भाई अब तुम जिम्मेदार हो, तुम्हें ये पैसे देने, ठीक है, मतलब कंपनी पैसे नहीं देगी, तुम पैसे दो,
ठीक, मतलब क्या, एक कंपनी में एक अकाउंटेंट है, उस अकाउंटेंट ने क्या किया, एक चेक, डायरेक्टर के कहने पर नेचुरली एक चेक बनाया। भाई कंपनी में अकाउंटेंट को भी पावर होती है चेक साइनिंग की। उसने चेक साइन किया और दिखा दिया फिक्टिशियस कोई परचेज 10 लाख रुपए, और वो 10 लाख रुपए अपने पास पॉकेट कर लीजिए, डायरेक्टर को दे दी जो भी किया। अब उसको पर्सनली लायबल ठहराना है, तो पर्सनली लायबल कैसे होगा, उसको कहेंगे भाई जो कंपनी ने 10 लाख रुपए देने हैं वो तुम दो। ठीक है, ये मतलब। सेकंड क्या है, फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक सर्च फॉर द डायरेक्शंस एज मे बी नेसेसरी फॉर एनफोर्सिंग एनी चार्ज इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन। और असाइनी कौन है, असाइनी वो है जो in whose favor by the directions of the person held liable under clause A the debt obligation mortgage or charge was created issued or transferred or the interest created but does not include an assignee for valuable consumption। लेकिन अगर किसी ने गुड फेथ में खरीदा है, फॉर वैल्यू देकर खरीदा, तो फिर ये नहीं हो। Where the adjudicating authority has passed an order under subsection 1 or subsection 2 of section 66 as the case may be in relation to a person who is a creditor of the corporate debtor। मतलब ये कि ये जिस आदमी ने गड़बड़ की वो क्रेडिटर भी है। इट कुड बी अ केस वेयर द पर्सन प्लेइंग ए फ्रॉड ऑन द कंपनी इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी आल्सो, सपोज ही इज एन एम्प्लॉय, सो नेचुरली वेजेस और सैलरीज आर आल्सो ड्यू टू हिम। उसका क्या होगा, उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, उसको कहेंगे तुम लाइन में सबसे पीछे लग जाओ। ठीक है, आफ्टर ऑल अदर डेट्स ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। लेकिन क्या शेयर होल्डर से पहले होगा, द आंसर इज यस। डेट्स लिखा है, ऑल अदर डेट्स ओड बाय द कॉर्पोरेट, तो उसकी प्रायोरिटी चेंज। एक अकाउंटेंट है जिसने फ्रॉड किया, उसकी सैलरी भी ड्यू है, तो सैलरी के लिए अब उसको पहले मिलने थे पैसे, मिलने थे ना उसको, 24 मंथ ड्यूज अगर वर्कर है तो, या 12 मंथ ड्यूज अगर एम्प्लॉय है तो। उसकी बजाय उसको कह देंगे भाई तुम लाइन में सबसे पीछे लग जाओ। ये हमारा सेक्शन 67। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ और सेक्शंस पढ़ लेते हैं। सेक्शन 94 या 95, सेक्शन 94 या 95 से पहले भी अगर किसी आदमी का फ्रेश स्टार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, तो फ्रेश स्टार्ट के केस में भी क्या होगा कि उसको बताना पड़ेगा, किसको, अपने बिजनेस पार्टनर्स को, कि भाई उसके अगेंस्ट में फ्रेश स्टार्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, सेक्शन 85 कहता है कि अगर किसी के अगेंस्ट में फ्रेश स्टार्ट शुरू हो रहा है तो ही हैज टू इन्फॉर्म हिज बिजनेस पार्टनर्स दैट इज अंडरगोइंग ए फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। यहां जो हमें ध्यान में देने वाली बात है कि वर्ड पार्टनर अलग होता है और बिजनेस पार्टनर अलग होता है। बिजनेस पार्टनर वो भी हो सकता है कि जिसके जिसके साथ हम, जरूरी नहीं है कि हमने कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया, है ना। तो यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है वो बिजनेस पार्टनर यूज किया। अब एक केस हम थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझते हैं, 94 और 95। सपोज आपके पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है, वो क्लाइंट आपको कहता है ऐसा है जी, मैं एक कंपनी में डायरेक्टर भी हूं और कंपनी की CIRP चल रही है। ठीक है, कंपनी की CIRP चल, मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी हूं। ठीक है, पूजा जी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको एक केस स्टडी बनानी है इसके ऊपर। ठीक है, तो वो क्या कहता जी है, सर। वो कहता है जी ऐसा है, मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूं और मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर। अभी पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी शुरू नहीं हुई, ठीक है, ना ही मेरे अगेंस्ट में कुछ एक्शन शुरू हुआ, लेकिन मेरे को डर है कि कंपनी की इंसॉल्वेंसी हो गई है तो मेरे ऊपर भी एक्शन हो सकता है क्योंकि मैंने भी बैंक गारंटी दे रखी। तो मेरे को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, मेरे को आप ये समझाओ, मैं क्या करूं। मेरे नाम जो प्रॉपर्टी है, क्या मैं उसको किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दूं, क्या सर वो पार्ट शुरू होने के क्या बाद तो कोई फायदा नहीं। क्या पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म भी लायबल हो जाएगी।
पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक्सपोर्ट फर्म, और एक्सपोर्ट फर्म में तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे को डर ये है कि मेरे अगर एक्सपोर्ट फर्म भी इसमें अटैच हो गई तो मेरे को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने अपनी बैंक गारंटी जो है वो पर्सनल कैपेसिटी में दे रखी है, उसमें किसी फर्म का नाम नहीं है ना, क्योंकि जब हमने कंपनी बनाई थी उस टाइम ये फर्म थी नहीं। बाद में अपने अपने एक्सपोर्ट बिजनेस भी शुरू कर लिया। उसके बाद क्या है कि मैं बिल्डर का भी काम करता हूँ। तो मैं बिल्डर का काम करता हूँ तो क्या मैं जो कंपनी सीआईआरपी में है उसके लिए भी रेजोल्यूशन प्लान दे सकता हूँ, या किसी के साथ मिल करके दे सकता हूँ? ये थोड़ी सी बातें हमें समझाई। तो आपको एज कंसल्टेंट उस आदमी को एडवाइस करना कि भाई क्या एडवाइस उसके लिए सही है। तो देखिए, इसमें ना दो तीन बातें देखनी पड़ती हैं। एक तो ये, हम तो ये कहेंगे भाई देखो ऐसा है, आपने जो गारंटी दी है, सबसे पहले तो वो गारंटी का फॉर्मेट हमें एक बार स्टडी करना पड़ेगा कि उस गारंटी में सबसे पहले हम क्या चीज देखेंगे। एक तो चीज ये देखेंगे कि भाई जो है उसमें कोई पार्टनरशिप फर्म का नाम तो नहीं है। और आप बताइए कि मान लीजिए एक बैंकर है, ठीक है। अब बैंकर जो है वो कंपनी की सीआईआरपी शुरू हो गई, और उसको लगता है कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान आ जाएगा। तो कंपनी का अगर रेजोल्यूशन प्लान आ जाएगा तो गारंटर के अगेंस्ट में प्रोसीड जरूरी है, या ऐसा भी हो सकता है ना ही करे गारंटर के अगेंस्ट में प्रोसीड? कर क्या सकते लगता सर। है? सर वो डिपेंड करेगा, अगर उनका कुछ हेयर कट हुआ है हाँ। तो अगर कुछ अमाउंट पेंडिंग बचता है, पूरा नहीं हुआ उनका, तो फिर वो कर सकते हैं सर, हम्म गारंटी इन्वोक हो सकती है सर। नहीं नहीं सर, आई थिंक द फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन डायरेक्टली प्रोसीड ऑन द guarantor without नो CD. नो no, प्रदीप जी, क्वेश्चन हियर इज डिफरेंट। क्वेश्चन हियर इज that Okay. company has got good potential, and the financial creditors, they actually a resolution plan is likely to come for that company. So in that situation, whether the banker can still proceed against the guarantor, this is my question. तो वो वही है कि अगर उनका पूरा अमाउंट रिकवर हो गया है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ बीच में हेयर कट हुआ है रेजोल्यूशन प्लान में, उनको पूरा रिकवर नहीं हुआ, फिर वो हाँ, गारंटी भी नो कर सकते हैं। ओके। तो अब जब हम सेक्शन 30 पढ़ते हैं, मैं आपको सेक्शन 30 दिखाता हूं एक बार। एक बार सेक्शन 30 को दोबारा पढ़। तो सेक्शन 30 में बोलता है कि भाई बाइंडिंग इफेक्ट है, सब पर बाइंडिंग होगा। तो वो ऐसे बेकार बोलते हैं फिर, उसका क्या मतलब है? ये देखिए, सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सेक्शन 31 क्या बोलता है? सेक्शन 31 बोलता है कि एक बार रेजोल्यूशन प्लान पास हो गया, ठीक है, तो वो बाइंडिंग हो जाएगा किस पर? कॉर्पोरेट डेटर पर, एम्प्लॉयज पर, मेंबर्स पर, क्रेडिटर्स पर, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी to whom a debt in respect of payment of dues arising under any law for the timing in force, such as authorities to whom statutory dues are owed, guarantors and other stakeholders involved in the resolution plan। तो बाइंडिंग कब हुआ फिर? इसका मतलब तो आप जो कह रहे हो बात कि भाई रेजोल्यूशन प्लान पास हो गया, ठीक है, तो आप कहते हो भाई रेजोल्यूशन प्लान में मान लो 20, जैसे उसको 100 करोड़ मिलना था बैंकर को, ठीक है, अब उसको मिल गया 20% हेयर कट के बाद 80 करोड़, ठीक है। तो क्या वो 20 करोड़ के लिए गारंटर के पास दोबारा प्रोसीड कर सकता है?
कर सकता है सर मेरे हिसाब से। हाँ, क्यों प्रदीप जी, आप क्या कहते हो इसको? मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस Yeah, बाइंडिंग? यहाँ बाइंडिंग लिखने का जरूरत क्या था? फिर तो कह देता भाई अगर कोई चीज बाकी है तो उससे ले लो। Guarantors and other stakeholders involved in the resolution plan. सुधाकर जी, आपका क्या कहना सर कर सकते हैं सर। है? नहीं, At- my question is, at- suppose there is a haircut to financial creditors, okay? yes sir. 100 crore was due to those financial creditors. Now 20% is the haircut offered by the resolution applicant. Right sir. Now whether for that balance 20 crores which he did not get because of that haircut, can he proceed against the guarantor? This is the question. Yes sir, he can proceed sir. Okay, right. So I also agree. बट आपको क्या है, आपको इसके ऊपर केस लॉज ढूंढ करके ग्रुप में डालने हैं. ठीक है सर। देयर आर केस लॉज ऑन दिस. तो वो जो केस लॉज है, केस लॉज में क्या बोला? केस लॉज में बोला कि whenever the resolution applicant puts forth a resolution plan, he considers the aspect of guarantee also, because in the information memorandum also you have to write कि what are the guarantees available, what are the guarantees given, वो सब बातें उसके अंदर लिखी जाती है. तो उसको फैक्टर इन करके चलता है कि भैया इससे नहीं मिलेगा तो मैं इससे ले लूं. इसी तरह से वो रेजोल्यूशन प्लान अपना लाता है. और गारंटर के केस में प्रोसीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बैंकर को फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग ही हैज टू डू? या सीधा एप्लीकेशन लगा देगा 95 नहीं, की? इससे पहले डिमांड डिमांड करना पड़ेगा, इन्वोक करनी पड़ेगी गारंटी से पहले। पहले डिमांड करना पड़ेगा, पहले रिवोक करनी पड़ेगी? नोटिस नोटिस देना पड़ता सर। मैं ऐसा पूछ सकता है ना आपसे कि पहले बैंक गारंटी इन्वोक करेगा या पहले डिमांड नोटिस देगा? क्या करेगा पहले? प्रोसीजर फॉलो करना ना सर, डिमांड नोटिस पहले देना सर। क्यों पूजा जी, क्या करेगा पहले? डिमांड नोटिस। हाँ, वो एग्जामिनर ऐसे ऐसे ही सवाल पूछता है, वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में. वो कहता है यार मैंने आईबीसी को बहुत बार पढ़ लिया, ये बात समझ में नहीं आ रही. इसी तरह से अपने जो है ज्ञान चक्षु आपको खोल करके काम करना है. मतलब अपने आप से सोचना है, अपने आप को ही क्वेश्चन पूछते रहना है कि भाई इस तरह से क्या होगा, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे में आस्क. इस तरह से पूछ सकते हैं सवाल. ठीक है जी. तो सुधाकर जी, आप उस ग्रुप में लिख दीजिएगा कि भैया ये जो है कौन से केस में ये डिसाइड हुआ कि कैन प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर आल्सो यस फॉर द सर। अनएग्जॉस्टेड अमाउंट. चलिए, ये तो हो गया. अब हम थे 94 पर, 94 और 95. अब आप ये बताइए कि सपोज इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैव स्टार्टेड. ठीक है. अब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग आपकी स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद में एक मिनट, उसके बाद में आप ये बताइए जैसे डायरेक्टर है कंपनी में. ठीक है. अब नाउ ही इज ए पार्टनर ऑल्सो इन ए पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है. Suppose he is a partner also. Now, whether the banker can rope in his partnership firm also, क्या उसके अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? उसने गारंटी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में दी है. नो सर, मेरे but, हिसाब से तो। but to the extent of his share in partnership Right, firm. right. To the extent of his capital in the partnership firm, because that capital belongs to him, है ना? And whatever assets are represented by virtue of that capital. Suppose उस कंपनी में एक प्रॉपर्टी है ना, और दो ही पार्टनर है, और दोनों पार्टनर के नाम, वो एक तरफ इधर कैपिटल खड़ी है, उधर आपकी प्रॉपर्टी है. तो एक किस्म से वो क्या है, वो वन ऑफ प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता है.
नाउ अब एक और सवाल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जस्ट मैंने भी ज्यादा नहीं सोचा इसके ऊपर, लेकिन वैसे डिस्कस करते हैं कि सपोज देर आर थ्री पार्टनर्स। एक पार्टनर का एक पार्टनर बिल्कुल भूखा नंगा है, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं, तो उसका फ्रेश स्टार्ट स्टार्ट हो गया। अब दूसरा पार्टनर है, उसने गारंटी दे रखी है बैंक, हो सकता है ऐसा। तो अगर एक पार्टनर का फ्रेश स्टार्ट शुरू है तो क्या दूसरे के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी हो सकती है? दिस इज द क्वेश्चन। देयर आर थ्री पार्टनर्स, अगेन फर्स्ट पार्टनर डजंट हैव एनी इनकम, ही डजंट हैव एनी एसेट्स, ठीक है, हो सकता है। एंड फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस has been initiated and that application has been admitted. Now, whether you can initiate insolvency proceedings against the other partner, yes or no? या फ्रेश स्टार्ट ओवर होगा तब होगा, क्या होगा? Sir, first of all, is it the liability of firm or is it the personal liability of the नहीं, he wants to owner? proceed against the firm. He wants to proceed against the firm. Then the other partner has to. Now, my question is simple. My question is whether you can, whether the banker, whether the financial creditor can initiate insolvency proceedings against second partner when fresh start is subsisting against the first partner. This is the question. क्वेश्चन तो सिंपल है। That one clarification. The financial creditor has given loan to firm or the individual. And the The financial creditor has financial. given loan to the firm. Then it's a joint and several liability. So the Right. other partners have to. The other partner has to. Now, here it says, let us read 94. 94 subsection 4. So what it says? 94 subsection 4 says, a debtor shall not be entitled, debtor here means the firm. We are taking the case of a partnership firm which is given a guarantee. A debtor shall not be entitled to make an application under subsection 1 if he is an undischarged bankrupt, if he is undergoing a fresh start process, undergoing an insolvency resolution process, or undergoing a bankruptcy. Now, our question is that firm is not undergoing fresh start process, but the individual is undergoing fresh start process. So in that case, whether section 94 application can be admitted, this is the question. क्यों पूजा जी, क्या कहते हो आप? थोड़ा फॉर्म देख लें, फॉर्म के अंदर हो सकता है कुछ ऐसा हो। मेरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? हाँ जी सर। Yes, sir. ये कहता है कि फॉर्म ए के अंदर देना है आपको। फॉर्म ए देख लेते हैं कि फॉर्म ए में इंफॉर्मेशन क्या मांगता है। फॉर्म ए में ये मांग रहा है इंफॉर्मेशन आपसे, एप्लीकेशन टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्ट ऑफ एसोसिएट्स ऑफ द गारंटर, लिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ गारंटर, directorships, details regarding guarantee given by the guarantor, statement by guarantor, particulars of declaration by resolution personal. तो क्या कहते हो प्रदीप जी आप?
So what will be the answer? The partnership firm has given a guarantee. Fresh start has been admitted. I think the other partner has to bear, sir. Yes. So if we go to the Indian Partnership Act says Yeah, the liability of the partnership, joint and several. So, several, yes. so even if one partner remains, suppose the third partner becomes insolvent. So then Yes, also one partner has to pay the entire liability and he will not be able to recover from the others also. एक तो पहले ही फ्रेश स्टार्ट में जा रहा है उससे तो क्या रिकवर करेगा, दूसरा पहले ही इंसॉल्वेंट हो गया तो ही हैज टू पे द एंटायर लायबिलिटी. ठीक है. अच्छा, नाउ लेट अस सी सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस. इंसॉल्वेंसी, सपोज इंसॉल्वेंसी पिटीशन हैज बीन एडमिटेड, तो इंसॉल्वेंसी पिटीशन होने के बाद में आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस? सपोज ए पर्सन हैज filed an insolvency petition, 94 एप्लीकेशन फाइल हो गई. अब 94 एप्लीकेशन फाइल होने के बाद में और आफ्टर एडमिशन whether there are any restrictions, this is my question. Yes, sir. Yes. So at what stage? At the after admission or after filing? What is the stage when restrictions will be applicable? Admission, sir. Admission, okay. Any section governing this? Any section which you can quote in support of this? Yes, sir. Because for admission section is 100. Section 101 talks of moratorium. Section 101 clearly says 101 to C. The debtor shall not transfer, alienate, encumber or dispose of any of his assets or his legal rights or beneficial interest. Then सब similar to section 14 है ना, तो यहाँ पर दे दिया. But my question is different. My question is application has been filed but it has not yet been admitted. So during the period between filing of application and admission, whether he can transfer, this is the question. After admission is okay. Section 101 to C clearly says. फिर उसमें इनकम्बरेंस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इंटरिम मॉरिटोरियम होगा, उसमें सिर्फ लीगल एक्शन वगैरह उनके ऊपर है कि वो स्टे हो जाएंगे. कोई पेंडिंग सूट्स हैं तो हाँ. उनके ऊपर स्टे लग जाएगा. हाँ. कोई फ्रेश सूट नहीं फाइल हो सकता. बट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर या एलिनेट या इनकम्बरेंस पे कोई नहीं है. Sir, between the filing and the admission, I think there are no restrictions. But any section which implicates these individuals with a fraudulent intent, जैसा हमने वहां पढ़ा कि भाई वहां 66 सेक्शन है, ऐसा कोई सेक्शन यहां पर भी है क्या? इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी. Is there any section which is similar? In bankruptcy there is a section. I think section 164 है क्या? మీకు కష్టం అంటే వంట కొరకు చూడు, నీకు కష్టమైతే వద్దు. ఓకే. $158. 158. So 158 talks of restrictions on disposition of property.
ఓకే నోటిఫై చేస్తావా? But this restriction is applicable in bankruptcy. तो bankruptcy में क्या बोलता है? Any disposition of property made by the debtor during the period between the date of filing of the application for bankruptcy and the bankruptcy commencement date shall be void. So in bankruptcy, actually even during interim moratorium, he cannot dispose of the property. It is void, even if it is done in good faith. Now, where are fraudulent transfers covered here? यहाँ fraudulent transfer कहाँ covered है? Individual insolvency या bankruptcy? Any section for fraudulent transfers? Undervalued transactions are there, sir. 164. नहीं, 164 में तो intention is not important ना. In preferential also, intention is not important. So if you are done, it's done. Just you have to see the look back period and you will say that you have altered the priority. है ना? जो कितना 178 है ना, क्या सेक्शन है वो? Priority of payment is given in section 178. 178. So if you have altered that priority, then it is preferential or undervalued. So my question is on fraud. तो fraud के लिए भी कोई section है क्या या नहीं? भाई वहां तो बहुत सारे सेक्शन है, कंपनी है, डायरेक्टर्स है, यहां पर कहाँ है? प्रदीप जी, आप एआई से पूछो एक बारी. Provisions on fraudulent transactions during insolvency of individuals. मेरे को लगता है कि सेक्शन 141 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगा. सेक्शन 141 क्या बोलता है? सेक्शन 141 बोलता है डी, प्रायर टू एंटरिंग इनटू एनी फाइनेंशियल और कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ सच वैल्यू एज में बी प्रेस्क्राइब. उसको कोई भी फाइनेंशियल या कमर्शियल ट्रांजैक्शन करनी है 1 लाख से ऊपर, आइदर इंडिविजुअली और जॉइंटली, he has to inform all the parties involved in such transaction that is undergoing a bankruptcy process. Rule 15. अब रूल 15 देखते हैं कि रूल 15 बोलता क्या है. ये है रूल 15. रूल 15 बोलता है restrictions on bankrupt. The restrictions on the bankrupt under clause D of subsection 1 of section 141 shall be applicable for any financial or commercial transactions of 1 लाख रुपीज और above. ठीक है, 1 लाख रुपए से ऊपर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप करोगे तो यू हैव टू इन्फॉर्म. अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि इन्फॉर्म तो ठीक है. Sir, section 184 to 187, इसमें there are punishment for false information by creditor and for punishment for false information concealment by bankrupt. ओके 186. वन 186. Yes, sir. ओके. So 186 is punishment for false information concealment by bankrupt.
बट ऐसा इंसॉल्वेंसी में भी है क्या? बैंक्रप्सी में तो ठीक है। 184 सर, फॉर 184 पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन बाय क्रेडिटर इन, हाँ, इफ ए ये तो डेटर और क्रेडिटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज फॉल्स। नहीं, माय क्वेश्चन इज वेयर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स आर कवर्ड ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी। भाई आफ्टर मॉरेटोरियम यू कैन नॉट ट्रांसफर, ठीक है, मॉरेटोरियम के बाद तो ट्रांसफर कर नहीं पाओगे आप, है ना? बट इंटरिम मॉरेटोरियम के बाद ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है। Maybe their intention is that application may or may not be admitted, he might pay, है ना? So they don't want to put the restrictions during the intervening period. भाई आपने इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल किया, मे बी यू पे, है ना? अगर पेमेंट करेगा तो अभी से रिस्ट्रिक्शंस लगाने की क्या जरूरत है? जब एडमिशन होगा तब लगा देंगे। बैंक्रप्सी में तो ये यू ऑलरेडी अंडरगॉन वन टेस्ट, इंसॉल्वेंसी वाला तो पीरियड ओवर हो गया ना, तो इसीलिए दे आर पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस अंडर बैंक्रप्सी। चलिए ये भी हो गया। अब अब हम अपनी वॉइस पीपीटी पे आ जाते हैं। कहाँ थे हम लोग? और एक फेंसिंग, ये हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर कर लिया, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, ये सारे सेक्शन कवर कर लिए। हाँ, ये है ना? तो इसमें लुक बैक पीरियड है, इट इज 2 years and 6 months इन केस ऑफ अदर पर्सन। तो आज की तो कथा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। या आपको लग अकॉर्डिंग टू मी, अच्छा, एस कुमार जी क्या बोल रहे हैं? As Kumar ji is saying, according to me, since the partners are individually liable, there is no liability, there is no need to include again for fraudulent transfer. But for companies, since they are a separate legal entity, separate section includes for fraudulent transfer. Yes, some extent you are correct. Because otherwise also partners are personally liable. प्रदीप जी, आपका कैसे चल रहा है तैयारी? When are you yes appearing? sir, कब कब हो रहे sir, हैं? September second week I am planning sir. बढ़िया है, बहुत अच्छा है। नहीं, आपका तो अच्छा तैयारी हो गया है मेरे ख्याल से, है ना? यू आर हाँ डूइंग। हाँ, because sir there are some works I have to deliver this month, so ओके, yeah. तो And sir अभी I, ऐसा है कि एज ऑन डेट वी हैव गॉट 4962 क्वेश्चंस। तो वेदर यू हैव अटेम्प्टेड ऑल दोस टेस्ट, सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए आपने? नहीं, a couple of I have attempted sir, yeah. सारा कर लो ना, उसको उसको तो कंप्लीट कर ही लो। Yes, yes. Sir, I have one this thing, IBC versus PMLA. So any latest, हाँ, can you आईबीसी just, वर्सेस पीएमएलए, एक्चुअली दिस इज ए केस। आप जो है ना, ये 32A, बेसिकली 32A से रिलेटेड है। 32A में बहुत सारे, tell? जैसे मिशेल स्टील वाला जजमेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाली जो भी जजमेंट्स हैं, वो सारे पीएमएलए पे दे, बॉर्डर लाइन ऑन पीएमएलए ओनली। जैसे नहीं, वर्षाना because इस्पात there है, are, वर्षाना इस्पात भी तो यही है, पीएमएलए ही तो है। hmm, ऐसे राजीव चक्रवर्ती है, वो भी तो पीएमएलए ही है। बहुत सारी जजमेंट्स है, वर्षाना इस्पात है, राजीव चक्रवर्ती है, भूषण स्टील है, hmm. अ, काफी सारी। तो अभी अभी देखो ना, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जो आपको वो दिया है केस लॉज वाला, वी हैव गिवन यू कीवर्ड्स इन दैट, Yes, yes, yes. है ना? एक, तो उसमें मिल जाएगा आपको, आप सर्च कर लो। Because there are some contradictory judgments. Few judgment में it is, नहीं, ये जो है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, न्यू केस लॉज, ये है।
फिर अभी ये भूषण पावर वाले में आया है, ये देखो, ये केस लॉज आ इसमें गया वो आपके पास, है ना। अब केस लॉज में हमने क्या किया हुआ, इसमें यहाँ दे रखा है, आप ये किसके रिलेटेड है, आप कंट्रोल एफ कर लो, कंट्रोल एफ करके पीएमएलए डाल दो यहाँ पे, आप पीएमएलए डालो, देखो क्या नजर आता है, कुछ आया नजर आपको? राजीव चक्रवर्ती आ गया ना, राजीव चक्रवर्ती 32A पर है। और कौन सी जजमेंट है उसके अलावा, ये जजमेंट आपको नजर आ गई, कौन सी, शिवचरण वर्सेस शिवचरण। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये भी एमएलए पर है। और अगली कौन सी है, वर्सोना इस्पात नजर आ गई है, तो पढ़ते पढ़ते मुझे भी याद हो गई थोड़ी थोड़ी। देखो ना, इस तरह से आप देखोगे तो बहुत सारी जजमेंट्स आपको आ जाएंगी, इंटरप्ले बिटवीन आईबीसी एंड पीएमएलए जो आप कह रहे थे। तो यही तीन चार है, शिवचरण है, राजीव चक्रवर्ती है, वर्सोना इस्पात है ना। तो ये सारे आप पीएमएलए करते रहो, आपको नजर आता रहेगा। एंड आई थिंक दिस पीपीटी इज विद यू, है ना, ये है ना आपके पास। यस 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 यस। तो बस इसी से कर लो आप, इसमें तो कोई भी कीवर्ड डालो आ जाएगा, क्या दिक्कत है ना। ओके जी, हैव अ गुड डे, बाकी नेक्स्ट क्लास में ग्रुप में इन्फॉर्म कर दें। Thank you, sir. थैंक यू। Okay. ओके सर, थैंक यू।